Exercise 13.1. Given that E and F are events such that probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of intersection F equal to 0.2, find probability of E upon F and probability of F upon E. Compute probability of A upon B if probability of B is equal to 0.5 and probability of intersection B is equal to 0.32. Question number 3. If probability of A equal to 0.8, probability of B is equal to 0.5 and probability of B upon A is equal to 0.4, find probability of A intersection B, probability of A upon B, probability of A union B. Evaluate probability of A union B if twice probability of A is equal to probability of B is equal to 5 upon 30 and probability of A upon B is equal to 2 upon 5. Question number 5. If probability of A equal to 6 upon 11, probability of B equal to 5 upon 11 and probability of A union B equal to 7 upon 11, find probability of A intersection B, probability of A upon B and probability of B upon A. Determine probability of E upon F in the exercises 6 to 9. 6 से लेकर के 9 तक जो है ये इन क्वेश्चनों में हमें probability of E upon F निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट, E इज़ द इवेंट हेड ऑन थर्ड टास्क एंड F इज़ द इवेंट हेड ऑन फर्स्ट 2 टास्क. सिमिलरली पार्ट सेकंड है, थर्ड है, तो ए काइन इज टास्क 3 टाइम्स. इस पर ये तीनों पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड. पार्ट फर्स्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5. पार्ट बी भी इस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false questions, 200 difficult true and false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the test bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? Question number 14. Given that the two numbers pairing on throwing 2 dice are different, given find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4. Question number 15. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. Question number 16. Probability of A is equal to 1 upon 2, probability of B is equal to 0, then probability of A upon B is option A 0, option B 1 upon 2, option C not defined and option D 1. तो इस एक्सरसाइज की मैंने कुछ वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक दे दी हैं. तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16. तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए सेंड कर रहा हूँ कि किसी के पास अगर कोई बुक वगैरह नहीं है तो वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकता है और क्वेश्चन लिख के उसकी सल्यूशन जो है वो उस वीडियो से कर सकता है. Question number 13, exercise 13.1. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false questions, 200 difficult true and false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? probability of easy question निकालनी है given that it is a multiple choice question. तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखेंगे और टोटल क्वेश्चन लिखेंगे. तो ये टेबल हमने बनाया है. इजी, डिफिकल्ट एंड टोटल क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं और टोटल क्वेश्चन ये 500 है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 500 इजी हैं और 400 डिफिकल्ट हैं, तो टोटल 900 है. तो इजी क्वेश्चन टोटल 800 है
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल 600 है और टोटल क्वेश्चन जो है वो 400 है। तो लेट ई डी टी एंड एम डिनोट्स द इजी, डिफिकल्ट, ट्रू एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए? 400। तो नंबर ऑफ इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आ गए? इजी एंड मल्टीपल चॉइस 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ई इंटरसेक्शन एम 500/14। टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900/1400। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एम, इजी क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना है हमारे पास? 500/400 अपॉन 900/400। तो ये हो गया 500/400 इंटू 1400/900। तो ये इसके साथ कैंसल, ये 200 इसके साथ, हमारे पास आ गया 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चंस given that it is a multiple choice question is equal to 5/9. Question number 14. Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of number on the dice is 4. Sample space when two dice are thrown. ns equal to 36. Let E is the event. Let E is the event. The sum of numbers on dice is 4. तो E जो है ये क्या क्या हो गया? 1 1, ये 2 बनेगा, 1 2, ये 3 बनेगा, 1 3, और उसके बाद 2 2, उसके बाद आ गया 3 1, उसके बाद और कोई नहीं, यही है 1 3 2 2 एंड 3 1। तो एन ई कितना हो गया हमारे पास? 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/36। अब आगे क्या है? लेट F is the event. F कौन सी event है? The sum of the two, given that two numbers appearing on throwing two dice are different. That the two numbers on throwing dice are different. Two numbers, let F is the event that the two numbers on throwing dice are different. दोनों नंबर को डिफरेंट है। तो क्या क्या होगा? जो डिफरेंट नंबर है 1 2, 1 3, 1 4, 1 5,
1 6, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। तो ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। तो ये बन गए NF इक्वल टू 30 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 30/36। अब ये जो है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 36 है और उसमें से यो सेम है, व्हेन 2 dice are thrown the numbers are same। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। इन 6 को टोटल में से माइनस कर लेंगे, टोटल 36 है, उनमें से ये 6 जो है, ये जो डबल है इनको माइनस कर लेते हैं तो तब भी 30 बचता है। तो ऐसे अगर करेंगे हम तब भी 30 आता है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 30/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब E इंटरसेक्शन F, ये देखना है हमने कि कौन सी इवेंट हैं जो E में भी है और F में भी है। तो एक 1 3 है और एक 3 1 है। देखो यहाँ पर ये आ गई 1 3, ये वाली, और ये आ गई 3 1। तो इसलिए ये हो गई 2 हो गई। क्या हो गई? 3 1 एंड पहले हम 1 3 लिखेंगे एंड 3 1। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/36। तो हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है? 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 30/36 विच इज इक्वल टू 2/36 इंटू 36/30। तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 15 2 30 विच इज इक्वल टू 1/15। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है वो आ गई है 1/15। 13.1 क्वेश्चन नंबर 15। Consider the experiment on throwing a die. If a multiple of 3 comes out, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. तो क्वेश्चन क्या है कि हम एक डाई थ्रो करते हैं और अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हम डाई को दोबारा थ्रो करते हैं, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो 3 का मल्टीपल जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या होता है?
एक तो 3 होगा और दूसरा 6 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 और 6 पड़ेगा तो हमें डाई को दोबारा ड्रॉ करना है, और अगर 3 और 6 नहीं बढ़ता है जब हम डाई थ्रो करते हैं, तो फिर हमें कॉइन को टॉस करना है। वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस व्हेन ए डाई इज थ्रोन एंड इफ मल्टीपल ऑफ 3 comes through the die again, and if any other number comes, toss a coin. So 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 1H, 1T, 2H, 2T, 4H, 4T, 5H, 5T। ये आ गए सैंपल स्पेस। तो टोटल ये 20 बन गया हमारे पास। अब हम ई इवेंट लेते हैं, गेटिंग ए टेल ऑन काइन, के काइन पर जब टेल आता है तो एक 1T हो गया, एक 2T हो गया और एक 4T हो गया और एक 5T हो गया। तो ये आ गया n is equal to 5 and n is probability of is equal to 5/20। Similarly, f is the event of getting 3 on at least one die। एक डाई पर 3 हो तो वो हो गया 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 एंड 6-3। तो हमारे पास ये 7 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 7/20। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, अब देखिए ई और एफ में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ 5 आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0 अपॉन 7/20 विच इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, एक क्वेश्चन रखा है 11 क्वेश्चन और 2 मल्टीपल हैं, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें उनको सॉल्व करने की। अगर नहीं होगी तो मुझे आप कमेंट करें, मुझे आप कॉल करें मेरे नंबर पर, तो मैं आपको उनकी वीडियो बना के भी सेंड कर दूंगा। मोर ओवर मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं। ऐसे ही मैं आगे भी हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो पहले डालूंगा और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। आप थॉरोली नोट्स बना के उसकी स्टडी करें।